Hello children, Treaty of Alinagar. After the fall of Calcutta, Robert Clive led an army to Bengal. Clive in a small war in 1757 reconquered Calcutta, and the Nawab was defeated in the war, and the British compelled the Nawab to concede to their demands. तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो फिर से बंगाल में कैलकाटा में पहुंचा ताकि वो नवाब को हरा के कब्जा कर सके, और एक छोटी सी लड़ाई के बाद उसने नवाब को हरा दिया और कैलकाटा को फिर से जीत लिया। इस हार के बाद नवाब को अंग्रेजों की सारी डिमांड्स को मानना पड़ा। बैटल ऑफ प्लासी। विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ अलीनगर, most of the English demands were fulfilled, but they wanted to control Bengal. They indulged in intrigues. Clive occupied French colony Chandranagar, and the Nawab could not stop him. Clive made a secret pact with Mir Jafar, who was to replace Siraj-ud-Daulah as Nawab of Bengal. After the conspiracy, pretext for war was reached. Nawab was accused of dishonoring Treaty of Alinagar, and soon army under Clive set out for Murshidabad. A battle between Nawab and the British force was fought at Plassey on 23rd June 1757. The major part of Nawab's army, led by the traitors Mir Jafar, Rai Durlab and War Latif, did not participate privately in the battle and so the Nawab was defeated and killed by Miran, son of Mir Jafar. The Battle of Plassey had no interface, but it was a war of immense political and economic importance. The Nawab became a puppet in the hands of the British. The political life of Bengal came under control of the British. The Battle of Plassey paved the way for the British to loot Bengal. He allowed British to trade tax-free in Bengal, Bihar and Orissa. The company also got the zamindari of the 24 Pargans. The company received the right to mint coins in Calcutta. The Battle of Plassey proved decisive as control of Bengal fell into the hands of the British. So, डियर चिल्ड्रन, बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ कि अलीनगर की संधि के बाद जो अंग्रेज थे उनका कब्जा लगभग कलकत्ता पर हो चुका था पूरी तरह से, पर वो पूरे बंगाल पर कब्जा करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने धीरे धीरे कॉन्स्पिरेसी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने चंद्रनगर में एक कॉलोनी बनाई और नवाब उसमें कुछ नहीं कर सका। फिर उन्होंने सोचा कि इस नवाब को हटा दिया जाए और दूसरे को बनाया जाए। तो मीर जाफर जो था वो खुद नवाब बनना चाहता था, वो अंग्रेजों से मिल गया और उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और जो नवाब था उस पर झूठे आरोप लगाकर 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध किया, जिसमें नवाब के साथ उसके ही अपने ही लोगों ने धोखा किया और मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसे मार दिया। इसके बाद से अंग्रेजों का बंगाल पर लगभग पूरा कंट्रोल आ गया और नवाब जो था उनके हाथों के सिर्फ एक पपेट, एक कठपुतली बन करके रह गया। उनको टैक्स फ्री कर दिया गया, उनको कॉइन्स बनाने का अधिकार मिल गया। एक प्रकार से उनको व्यापारिक रूप से उन्हें खुली छूट मिल गई कि वो लूट कर सके और भारतीय लोगों को उनका सारा धन ले सकें और किस प्रकार से अपना फायदा कर सके। तो बैटल ऑफ प्लासी ने जो कैलकाटा था, जो बंगाल था, उसका पूरा अधिकार ब्रिटिश कंपनी के हाथों में दे दिया। नाउ बैटल ऑफ बक्सर। Battle of Buxar 1764. After the Battle of Plassey, the company used Mir Jafar as a golden sack into which they could dip their hands at pleasure. The treasury was empty. The demand of company kept on increasing. The officials and their agents exploited peasants and craftsmen and forced them to sell their goods at cheaper rate, and thus made huge profits. The Nawab Mir Jafar did not get an opportunity to take decisions in favor of his state's interest, as he was disposed of, and his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab of Bengal. Mir Qasim realized his position of utter dependence on the English company. He began to consolidate power. He dismissed loyal officials of English. He built a new military setup and abolished the custom duties. These steps proved disastrous for the company. Finally, in the battle fought in 1763, Mir Qasim was defeated by the company force and he fled to Awadh. The Nawab of Awadh, Siraj-ud-Daulah,
was also against the British, and Shah Alam, the fugitive Mughal emperor, had taken refuge in Awadh. The three allies clashed with the company's army at Buxar on 23rd October 1764, and they were defeated. Siraj-ud-Dowla and Shah Alam in 1765 signed treaties with Clive. तो क्या हुआ कि प्लासी के युद्ध के बाद फिर बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई जो हुई 1764 में हुई। तो क्या हुआ, जो मीर कासिम था, जब वो मीर जाफर था, जब वो राजा बन गया था, तो अंग्रेज़ों के हाथ में जैसे कि एक खजाना लग गया, और उन्होंने जो नवाब का खजाना था वो तो खाली था, पर कंपनी के हाथों में पूरा खजाना जा चुका था, और उनकी डिमांड्स भी लगातार बढ़ती जा रही थी। जो आम आदमी था, क्राफ्ट्समैन थे, उनको परेशान करते थे वो कि कम रेट में वो सामान दें ताकि वो अंग्रेज जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। इसके लिए वो उन पर प्रेशर भी डालते थे। नवाब इन सारी चीज़ों को के बारे में कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक कठपुतली था, और इस तरह से लास्ट में जो नवाब था उसे डिस्पोज होना पड़ा, और इसके बाद उसका सन इन लॉ जो था मीर कासिम, वह बंगाल का नवाब बना। जो बंगाल का नवाब जब मीर कासिम बना तो उसने ये रियलाइज़ किया कि वह इंग्लिश कंपनी पर वो लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट है, और फिर उसने धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले जो उसने इंग्लिश के ऑफिसर्स थे उनको डिसमिस करना शुरू किया। इसके बाद फिर उसने अपनी मिलिट्री को भी बढ़ाया। तो इस तरह से उसने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन कंपनी जो थी वो कहाँ मानने वाली थी। तो 1763 में फिर से एक लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में जो था मीर कासिम वो हार गया। फिर उसे अवध के लिए भागना पड़ा। वहीं पर अवध में एक शुजा-उद-दौला जो था, शुजा-उद-दौला भी ब्रिटिश कंपनी से हारा हुआ था, और एक शाह आलम था मुगल एम्परर, वह भी। तो ये तीनों ने मिलकर के फिर से एक बार अपनी ताकत इकट्ठी की, अपनी सेना इकट्ठी की, और फिर बक्सर की लड़ाई उन्होंने बक्सर के मैदान में लड़ाई की, जो कि 23 अक्टूबर 1764 में हुई। लेकिन ये तीनों मिलकर भी अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाए, और इसके बाद सिराजुद्दौला और शाह आलम ने 1765 में क्लाइव के साथ फिर संधियाँ कर ली।